fear adults. There is no space and room for love when there is fear. Yeah, yeah. And because we're talking about women and fear, I don't know, एक दूर की बात है लेकिन फिर भी मैं आप तक लेकर आऊँगी. दिल्ली में जब हम लोग बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में आते हैं तो as women there is this element of fear you feel on the road in the night. And I call upon all the men of Delhi and in the world, whenever there is a woman with you on the road in a किसी सुनसान एरिया में या किसी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में भी, let her know that she doesn't need to fear. That's the first thing that we need to do. दिया, बहुत सालों से आपकी खूबसूरती के बारे में बहुत बात होती आई है. And I'm not trying to be shallow here. One, it's a big gift that you've got. Of course, you were Miss India Asia Pacific, the pageant winner, and you've been one of those people who were always talked about. I guess anybody who would give you an introduction would say how beautiful you are, right? ये किसी कौन सा मैंने शेर कहीं सुना था, इसका एक बोल ये थे कि अच्छी सूरत भी बहुत बुरी चीज है, जिसने डाली नजर बुरी डाली. So sometimes we don't realize how gifted we are अगर हमारी सूरत ऊपर वाले ने अच्छी दी हो, right? Because last time when I was in a conversation with Javed साहब, I asked this. I said कि हर शायर एक औरत की खूबसूरती पे लिखता है, हर गीतकार एक लड़की की खूबसूरती पे लिखता है, उसका चेहरा, उसके बाल, उसकी आंखें बड़ी, उसके होठ गुलाबी, लाल गुलाबी, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, सोने जैसे बाल, चांदी जैसा तन. A lot about beauty. उससे कहीं ना कहीं एक सिग्नल गया है कि जो शख्स ब्यूटीफुल हो उसके लिए चीज़ें आसान हैं, और जो शख्स बहुत खूबसूरत ना हो उसके लिए चीज़ें उतनी आसान नहीं. और इसमें क्या गीतकारों का एक बहुत बड़ा हाथ है ये वो क्रिएट करने में कि ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली. एंड ही सेड कि हमारी सोसाइटी क्योंकि सेग्रीगेटेड सोसाइटी रही है, तो लड़कों ने ज़्यादातर लड़कियों को दूर से देखा होता है. दूर से देखते हैं तो सिर्फ उनका हाँ छाया, तन, खूबसूरती देखते हैं. पास बैठेंगे तो पता लग जाएगा नहीं तो मेरे जैसी है, ये भी थोड़ी बेवकूफ़ है. तो सेग्रीगेटेड सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक बाय प्रोडक्ट ये भी होता है कि यू स्टार्ट लुकिंग एट ईच अदर इन ऑ कि कैसा होगा वो शख्स, व्हाटएवर. एंड सेकेंडली, ब्यूटी को लेके हमारे कुछ मापदंड हैं. In the recent past, there have been campaign about growing up. We didn't know about body shaming, right? काला सांवला बोलते हुए हमें शर्म नहीं आती थी, लोग बोलते थे, लेकिन अब नहीं बोल सकते हैं आप. I want to know from you. I have never seen you endorsing any beauty cream or any product of beauty. You have invested. I did when I was very young. You did? I would never do it now. What's your take on beauty? Let's talk about it. Honest बात है, 16 साल की थी, पैसे मिल रहे थे, कर लिया. जब अक्कल आई ठिकाने थोड़े तो बंद कर दिया, ना बोलना शुरू कर दिया, है ना. My idea of beauty is very simple. It's what my mother has always told me. Beauty is what beauty does. It's as simple as that. अच्छे सोचो, अच्छा काम करो, प्यार बांटो, खुश रहो, और अपना जो इंडिविजुअल परस्यूट है ऑफ ग्रोथ वो पूरी तरह से उसमें लग जाओ. I think there's nothing more attractive than an authentic voice, an authentic human being, somebody who speaks the truth, who feels the truth, who is in the pursuit of individual growth. To me, there is nothing more beautiful. In this time, is it possible to kind of excel in the film industry as an actress, even if you're not very beautiful? That's a trick question. Atika wants to get me into trouble. No, I'm just see. अभी जो OTT वर्ल्ड आया है उसमें कितने नए चेहरे हमको देखने को मिले हैं. सबसे बड़ी बात ये स्टारडम कभी मिथ ब्रेक कर दिया, और बहुत हसीन चेहरे ही एक्टिंग में आ सकते हैं, ये भी मिथ ब्रेक हो गया है. एंड अ पर्सन who's been acting for the last 15 years. Let's just agree that the only way we can thrive in any profession is if we continually grow. Yeah,
our skills have to grow with time. And I mean, you look at तब्बू को देख लीजिए, 8 साल, इस साल के सबसे बड़े 2 जो हिट फिल्में हुई हैं वो उनमें है. दृश्यम एंड भूल भुलैया. Yeah. So I mean, look at her. She's a powerhouse actor, and I mean that is the kind of artistry that one would want to aspire for. Yeah, it's been such a long time that you've been in the industry. और आपने जनरली अकेले ही बहुत कुछ किया है लाइफ में. एक शेर था कि पत्थर पे कोई शेर था ना, तराश के, तो बताइए जिसमें किसी की ग्रूमिंग पे कोई शेर हो. सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? एक बहुत अच्छा शेर है, जैसे याद आएगा मैं बताऊंगी. जोर से बोलिए. मैम, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? सादगी में भी कयामत की अदा होती है. अच्छा, एक बार शेर याद आया मुझे. जिसको बेदार न कर पाई किसी की ठोकर, एक फनकार के हाथों से वो पत्थर जागा. नाम नहीं याद आ रहा है किसका है, बहुत प्यारा शेर था. उससे हमें ये समझ में आया कि एक गाइड की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में. हम हैं तो सब मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के ही बने हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमें तराशते हैं ज़िंदगी में. इंसान भी हो सकते हैं, हालात भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक गाइड या गुरु या मेंटोर मिल जाए तो आप अपने ज़िंदगी की मंजिलों पर थोड़ा पहले पहुंच जाते हैं, वरना वक्त लगता है. आपकी लाइफ में आपके मेंटोर्स, गाइड्स, गुरु, टीम, फैमिली, एलाइज कौन है? I think my most integral guide, my guru is my mother. वो मेरे साथ ही रहती हैं, बहुत सालों से रही हैं और बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं मेरे हर फैसले से, हर एहसास से, हर मकसद से. And the other people, I think, are people who you meet at work, who you discover and a love for, and of course develop respect for. So there's Rajkumar Hirani, there's Baman Irani, there's Shabana ji, there's Javed Saab, there's Zoya Akhtar. These are some of the most rich and treasured influences I have in my life. And जस्ट इन केस फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग न रहे हों या आप लोगों ने बॉम्बे आके इंडस्ट्री को न महसूस किया हो, एक इमेज एक होती है कि भाई इंडस्ट्री ऐसी होगी. आपको पता नहीं कैसी होगी, या आपके जो दोस्त बता रहे हैं, या टीवी पे जो देख रहे हैं, या अखबारों में जो पढ़ रहे हैं, या मैगजीन में जो पढ़ रहे हैं, उससे एक इंसान एक तस्वुर सा बना लेता है इंडस्ट्री का. मैंने ये देखा है कि आउटसाइड से हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत अलग लगती है, लेकिन जब आप 15-20 साल इंडस्ट्री में बिता लें तो एक अलग एहसास होता है. इतनी कमराडरी है, इतनी दोस्ती है और इतनी सिंप्लिसिटी है. इसको कहते तो है ग्लैमर की दुनिया, बट है नहीं इतनी ग्लैमर की दुनिया. इसमें परेशानियां भी हैं, जद्दोजहद भी है, अच्छे दोस्त भी हैं, सच्चे दोस्त भी हैं, बहुत मेहनत भी लगती है, लेकिन आप मेहनत करने को तैयार हो तो उसका फल भी जल्दी मिलता है. तो इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं? बहुत खूबसूरत जगह है. जितना कुछ मुझे यहाँ पे सीखने को मिला है शायद ही कहीं और सीखने को मिलता. इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी इंक्लूसिविटी है, इतने अच्छे लोग हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स ऑफ थिंकिंग, वॉक्स ऑफ लाइफ, सब आकर एक साथ मिलकर एक कहानी को बनाने की कोशिश करते हैं, कहानी को कहने की कोशिश करते हैं. पिछले 3 सालों में मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म पर काम किया. एक तो अनुभव सिन्हा के साथ मैंने एक फिल्म बनाई, थप्पड़, देखिए आपने. तो जब हम उस फिल्म पर काम कर रहे थे तो ऐसे लगता था कि हम पार्टी कर रहे हैं. एक रोज़ एक बैठक होती थी, हम रोज़ बहुत सारे बातों पर गहराई से उसको समझने की कोशिश करते थे, इंट्रोस्पेक्ट करते थे. There would be debates, heated debates, a lot of intellectual stimulation. Ratna Pathak Shah, Taapsee, Firebrand. Then of course there were so many other amazing artists on that film.
So it was great fun. And Anubhav himself is a very interesting human being, very layered, very uh, brilliant mind. वो डायलॉग लिखते हैं और ऐसे लिख देते हैं और फिर आप पढ़ते हैं उसको समझ जाते हैं, लेकिन फिर यू गो बैक टू इट एंड यू हियर इट अगेन एंड यू लाइक ओ माय गॉड डिड ही एक्चुअली से दैट. So there were so many, even now I can go back and watch Thappad. There were so many nuances that I got when I read the script. लेकिन जब आप फिल्म देखने लगते हो तो सडनली वो नजर आने लगते हैं ना, आपकी चीजें तैयार हैं. तो those are those little moments. क्या करती है ये जो बड़ी गाड़ी में उसको मेरे कैरेक्टर को काम के लिए निकलते हुए देखता है पावेल्स कैरेक्टर से, करती क्या है ये, तो बीवी कहती है नौकरी. So there are little moments like that really enrich you, and I think that's the beauty of being in cinema. It's the stories that you choose to tell, और of course ये तो आप जानती हैं कि अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करें तो अच्छे लोगों के साथ ही काम करने का मौका मिलता है. So this year I actually shot 2 beautiful films with Anubhav again called Bheed, and another film that Taapsee Pannu has produced called Dhak Dhak. It's a story of 4 women जो दिल्ली से हैं और बाइक्स पर खारदुंगला पहुंचती हैं और क्यों जाती हैं, कैसे पहुंचती हैं, ये कहानी है. बहुत खूबसूरत कहानी है. इसका पोस्टर बहुत प्यारा है. रत्ना पाठक शाह, you women from all different walks of life and ages, different age groups. I tried getting back to motorbiking. I used to bike when I was 15 because I grew up in a cantonment. तो वहाँ तो कुछ डर ज़्यादा नहीं होता है, लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं. So I started riding very early, and it's only just before COVID I started biking again. And biking is not just वो धूम वाली दुनिया नहीं होती है बाइकिंग की कि हाँ करके चले जाएंगे और कुछ होगा नहीं आप मर जाएंगे अगर ज़्यादा घर करेंगे. It's a discipline. There are 40 to 50 people all biking in a line with discipline, communicating with each other in non-verbal expressions. It's amazing. Try it sometime. As a discipline, not as a shop, but as a discipline. People do it. There are many groups here in Delhi and Bombay. And yeah, I was going to come to that. दिया एक बड़ा प्यारा सीन था थप्पड़ में. वो आपसे कहता है कि आप झूठी गवाही दे दीजिए कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था. And I remember how powerful that scene was and how powerful your eyes you had used in the way you expressed your contempt at this line.